Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your math teacher. Now, we will start our lesson number 5, factors and multiplies. So now all of you open your textbook. So now we will see what you had learned our last classes. So what you had learned our last classes, all of you know very well. First you had learned about the multiplies, then property of multiply. So which property of multiplies? First property of multiplies, every number is multiple of itself. Then property number 2, every number is a multiple of 1. Then property number 3, a multiple of number is always greater than or equal to number itself. Then property number 4, a number has an uncountable number of multiplies. Then property number 5, there is no largest multiple of numbers. This is property of multiplies. Then we had learned the odd and even number. So what is the odd number and what is the even number? A number which have completely divisible by 2 is called odd number, and number which has not divisible by 2 is called even number. So this is odd and even number. Then after we had learned the factor. What is the factor? A factor of number divide a number without leaving a remainder. Factor is divide, after dividing the number we will get remainder is the 0 is called the factor of this number. For example, 8 into 7 equal to 56. When we are divided 56 by 8 we will get 7 is the quotient and we will get remainder is the 0, and when we are divide 56 by 7 we will get quotient 8 and we will get remainder 0, means 8 and 7 both are the factor of 56. So this is the factor. Then after we had learned the factor tree, this is the diagram of factor tree. Then after we had learned the prime and composite number. What is the prime number and what is the composite number? A number have only two factor, one and the number itself is called prime number, and number which have a more than two factor is called composite number. This is the prime number and composite number. Then property of factor. Every number can divided by 1 without leaving a remainder. Therefore, 1 is a factor of every number, and 1 is the smallest factor of every number. 1 is the smallest factor of every number because 1 is divided by every number. Then property number 2, every number can divide by itself without leaving a remainder. Therefore, every number is the factor of itself number. When we are divide itself number, we will get remainder is the 0, means every number is the factor of itself number. A number has a limited number of factor. A number has a limited number factor. For example, 15 have a 4 factor and 24 have a 8 factor. So every number have a limited factor. Then property number 4. A factor of number is neither equal to or small than a number. A factor of number neither equal or not small than the number. The biggest factor of number is the number itself. Biggest factor of every number is the itself number. So this is the this is the property of factors. Thereafter we had learned the twins prime number. What is the twin prime number? Two prime number that differ by a 2 is called twins prime number. Then after we had learned the SCM common factor. What is the common factor? When we are take out the two numbers of factor, from after take outing the two number of factor, whichever the common factors in the both number it is called the common factor. For example, 12 and 15. From the 12 and 15, which is the common factor? 1 and 3 is the common factor. So this is the common factor. Then SCF. SCF means highest common factor. So after take outing the factor of the both number, and then after we are take out the common factor. So what is the common factor of 12 and 15? 1 and 3 is the common factor. Now which is the highest number? Highest means higher number. कौन सा बड़ा number है? 1 और 3 में से 3 is the highest number, means 3 is the SCF of the 12 and 15. Then after we had learned the lowest common multiplies, LCM. So LCM means lowest common multiplies. So
first SCF means highest common factor. There is coming the word is the factor and here coming the word is the multiply. So when we are take out the LCM, that time we are doing the multiplies. So now look at here 3 and 4. 3 and 4 multiplies 3, 4, 9, 12, 15, 21, 24, 27, 30, 33, 36. This is the multiples of 3. We are multiply this number in from 1 to that when we are take out the multiplies of the number, they have a unlimited number. वहाँ पे कैसे होता है, अनलिमिटेड नंबर होता है. वहाँ क्या करते हैं, पहले 3 नंबर है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेकर अनलिमिटेड नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं जब मल्टीप्लाइज निकालते हैं. सो यहाँ पे हमने 3 और 4 के मल्टीप्लाइज निकाले. और व्हाट इज द कॉमन नंबर, 12, 24, 36. दे आर द कॉमन इन द 3 एंड 4. सो विच इज द कॉमन मल्टीप्लाइज. कॉमन मल्टीप्लाइज क्या है, 12, 24 एंड 36. दिस इज द कॉमन मल्टीप्लाइज. नाउ वी वांट अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई. विच इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, 24 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज. मीन्स LCM. LCM of the 3 and 4 is the LCM of the 3 and 4 is the 12. Okay, so this is the LCM. Then after we had learned the prime factorization. So what is the prime factorization? A factor in which every factor is the prime is called prime factorization of the number. Prime factorization मतलब ऐसे कोई भी नंबर के हमें फैक्टर निकालना पड़ता है जब तक वो नंबर क्या नहीं आता है, प्राइम नंबर. एंड व्हाट इज द प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द इटसेल्फ नंबर. दिस इज कॉल्ड द प्राइम नंबर. सो नाउ we had learned that prime factorization. Then after we had learned the prime factorization by division. हमने डिवीजन मेथड यूज करके हमने फैक्टर निकाले थे. कौन से फैक्टर निकाले थे, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाले थे. Then after we had learned the SCF by prime factorization. So what is the word coming here, प्राइम फैक्टराइजेशन. जब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड लिखा रहता है तब हमें क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है और उसके बाद जो भी कॉमन है. जब हम SCF निकालते हैं जो भी कॉमन नंबर आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 6 और 18 के प्राइम फैक्टर निकाले और उसमें से कॉमन क्या है, 2, 3 ये कॉमन है. जो भी कॉमन नंबर आते हैं उसका हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है. जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है वो हमारा होता है SCF. लेकिन जब हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर है उसको लिखते थे. यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 और 3, और जो कॉमन है उसको 1 टाइम ही लिखना है. और फिर उसके बाद जो अनकॉमन है उसको और 1 टाइम लिखना है. और जो भी कॉमन है और अनकॉमन है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है वो होता है हमारा LCM. सो दिस इज द LCM by using the prime factorization method. Then after we had learned the factor tree, then test division. तो यहाँ पे हमने टेस्ट डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा था. सो इसमें फर्स्ट 10 के डिविजिबल के लिए क्या चाहिए, लास्ट डिजिट, मतलब जो वंस प्लेस पे वैल्यू रहते हैं वो क्या चाहिए, 0 है. अगर 0 है तो वो 10 का डिविजिबल है. देन 5 के डिविजिबल के लिए लास्ट वाला डिजिट है वो 0 नहीं तो 5 चाहिए. लास्ट डिजिट वी वांट 0, अदरवाइज 5. 0 नहीं तो 5, ये दो में से जो भी डिजिट आएगा वो क्या होगा, फिर 5 का डिविजिबल होगा. देन 2 के डिविजिबल के लिए लास्ट वाला जो डिजिट रहता है वो 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए. क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8. अगर ये लास्ट वाले डिजिट है तो वो 2 का डिविजिबल होता है. देन 3 के डिविजिबल के लिए क्या करना चाहिए, जो भी नंबर है उसको ऐड करने के बाद अगर वो 3 के साथ डिवाइड होता है वो तो 3 के डिविजिबल होता है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल 126 है. अगर 1, 2, 6, 1 और 2, 3 और 6, 9 3 के साथ डिवाइड होता है, यस, तो ये 3 का डिविजिबल है.
देन उसके बाद 4 का डिविजिबल। 4 के डिविजिबल के लिए क्या करना है, लास्ट वाले जो 2 डिजिट होते हैं, मतलब यहाँ पे 416 है तो लास्ट में क्या है 16 है, लास्ट के जो 2 डिजिट है अगर वो 4 के साथ डिवाइड होता है मतलब वो 4 का डिविजिबल है। देन 9 के डिविजिबल के लिए सेम 3 के तरह सभी नंबर को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद वो 9 से डिवाइड होता होगा तो वो 9 का डिविजिबल है। सो दिस इज टेस्ट डिविजिबिलिटी। Then after we had learned the mathematics A for a concept and calculation skill. Now we will start our today's topic mathematics B for a higher skill. So now first question MCQs. First question is which of these is not a property of multiplies? Which of these not a property of multiplies? इसमें से जो हमारे मल्टीप्लाइज की प्रॉपर्टी नहीं है। सो नंबर 1, every number is multiple of itself. This is the property of multiplies. Yes, every number is a multiple of itself. जो सभी नंबर है वो खुद के नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो सकता है। यस, मीन्स एवरी नंबर इज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइज, मतलब ये मल्टीप्लाइज की प्रॉपर्टी है। देन 2 नंबर, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। जो सभी नंबर है मल्टीपल के नंबर है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यस, 2 into 1 कर सकते हैं हम। यस। देन प्रॉपर्टी नंबर 3, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 0। 0 का मल्टीपल हो सकता है नहीं। अगर हम 0 के साथ, अगर 2 है 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होता है 0, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइज नहीं है। एंड डी नंबर, अ नंबर हैज़ अ अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीप्लाई। जो हमारे मल्टीप्लाइज के नंबर होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। यस, हम 2 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो हमारे मल्टीपल्स नंबर होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। जो 2 है उसको हम 1 लाख 1 करोड़ से के साथ भी मल्टीप्लाइज कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, मतलब हमारे जो नंबर है उसके अनलिमिटेड मल्टीप्लाइज होते हैं। सो इसमें से प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? प्रॉपर्टी नंबर सी, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 0। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारी मल्टीप्लस की प्रॉपर्टी नहीं है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 0। सो फर्स्ट नंबर आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है फैक्टर की? एवरी नंबर हैज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यस, जो हमारे नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 2 है, 2 का फैक्टर 2 होगा। यस, 2 के साथ 2 के डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, मतलब क्या होता है वो 2 का फैक्टर होता है। मतलब एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ नंबर। यस, एवरी फैक्टर 1 is the factor of every number. Yes, 1 is the factor of every number. 1 is the smallest factor of every number. 1 ये जो होता है वो सभी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, तो 1 ये सभी नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। अ नंबर हैज़ अ अनलिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो फैक्टर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं नहीं, वो लिमिटेड होते हैं। जो हमारे फैक्टर रहते हैं किसी भी नंबर के वो लिमिटेड रहते हैं, अनलिमिटेड नहीं रहते हैं। और फैक्टर ऑफ नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर दैन द नंबर। जो हमारा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, उसका फैक्टर वो इटसेल्फ नंबर तक ही होता है, उससे ऊपर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 2 होगा। 2 के ऊपर उसका फैक्टर होगा क्या? नहीं होगा। मतलब सभी नंबर के फैक्टर वो क्या होते हैं? उसका हाईएस्ट फैक्टर इटसेल्फ नंबर होता है। हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है? इटसेल्फ नंबर होता है, उससे ऊपर होगा क्या? नहीं होगा। तो उसमें से प्रॉपर्टी ऑप्शन नंबर सी, अ नंबर हैज़ अ अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ फैक्टर, ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर नहीं है। तो सेकंड का आंसर है सी। नाउ थर्ड नंबर, द नंबर ऑफ फैक्टर दैट इज द प्राइम नंबर हैज़ इट। इसमें से प्राइम नंबर का क्या आता है? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अ नंबर विच हैव अ
टू फैक्टर्स वन एंड द इटसेल्फ नंबर, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द नंबर ऑफ फैक्टर दैट इज द प्राइम नंबर हैज़ इट। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसके टू फैक्टर्स रहते हैं उसको हम प्राइम नंबर होते हैं। जीरो फैक्टर है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं क्या? नहीं। जिसका वन फैक्टर होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं क्या? नहीं। जिसके अनलिमिटेड फैक्टर रहते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं क्या? नहीं। जिसके टू फैक्टर्स होते हैं उसके हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो थर्ड नंबर का आंसर क्या है? C2। नाउ फोर्थ नंबर, इफ वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ अदर द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज। अगर वन नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लाइज होगा तो उसका एलसीएम नंबर क्या होगा? द स्मॉल ऑफ द टू नंबर, द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, टू नंबर में से स्मॉलर होगा वो। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, जो उसमें से बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम होगा। यस, उसमें से जो एलसीएम जो बड़ा नंबर है वही होता है एलसीएम। देखो 3 और 6 है, 3 का मल्टीपल 6 है, ठीक है। 3 के मल्टीप्लाइज निकालेंगे तो क्या होता है? एलसीएम में हम मल्टीप्लाइज निकालते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, ये 3 के मल्टीप्लाइज है। और 6 का क्या होगा? 6, 12, 18, 24, ये 16 के मल्टीप्लाइज हो गए। तो हमारा एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कॉमन क्या है इसमें? 6 है, 12 है, दोनों कॉमन है। इसमें से अभी 6 और 12 में से छोटा क्या है? 6 है। मतलब जो हमारा बड़ा नंबर होता है 3 और 6, 3 का मल्टीप्लाई 6 है और 6 से बड़ा है। जब हम एलसीएम निकालते हैं तब जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एलसीएम होता है। द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दोनों में से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 × 6 18 होता है, तो ये हमारा एलसीएम होगा क्या? नहीं होगा। द ग्रेटर नंबर एंड स्मॉल नंबर, द ग्रेटर एंड स्मॉल नंबर दोनों भी होगा? नहीं। तो हमारा फोर्थ नंबर का आंसर क्या है? बी नंबर, द ग्रेटर ऑफ टू नंबर। अगर वन नंबर दूसरा का मल्टीपल है तो उसमें से एलसीएम निकालने के समय उसका नंबर कौन सा होगा? द ग्रेटर ऑफ टू नंबर। दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है वही एलसीएम होता है। So this is question number 4. Now higher order think. Question number 5. What is the smaller number which when add an even number make it in an odd number? स्मॉलर नंबर है, कौन सा स्मॉलर नंबर है जिसको हम ऐड करने के बाद उसका नंबर ऑड आता है? मतलब देखो 2 नंबर है, 2 नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर है? 2। ऑड है कि इवन है? 2 नंबर इज द इवन नंबर। कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। अगर 2 में हम 1 मिलाते तो क्या होता है? 3 होता है। तो 3 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। फिर 4 है, ठीक है। 4 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। 4 में अगर 1 मिलाएंगे तो क्या होता है? 5 होता है। 5 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। अगर 6 लिया, 6 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। इसमें 1 मिलाएंगे तो क्या आता है? 13 आता है। तो वो क्या होगा? ऑड नंबर है। अगेन 1, 48 है, ठीक है। 48 हमारा कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, ठीक है। वे 2 के साथ डिवाइड होता है। अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 49 आता है। 49 इवन नंबर है क्या? नहीं है, ऑड नंबर है। सो ऐसा कौन सा नंबर है उसमें ऐड करने के बाद ऑड नंबर हो जाता है? किसी नंबर में अगर इवन नंबर है, इवन नंबर में 1 मिलाते हैं तो वो कौन सा नंबर हो जाता है? ऑड नंबर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आता है? 1। Now question number 6. If a number is divisible by 4, if the number is divisible by 4, will it is always be divisible by 2? Yes, अगर 4 का डिविजिबल है तो वो 2 का भी डिविजिबल होता है। किसका डिविजिबल होता है? 4। अगर वो 4 का डिविजिबल है तो वो 2 का भी डिविजिबल होता है। If a number is divisible by 2, will it is always divisible by 4?
नहीं, अगर 4 का डिविजिबल है तो वो 2 का डिविजिबल हो सकता है, लेकिन जो 2 का डिविजिबल होता है वो 4 का डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका आंसर आता है नो। नाउ सी नंबर, इफ अ नंबर इज, अगेन क्वेश्चन नंबर सी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, if a number is divisible by 3 will it always be divisible by 9। अगर वो 3 का डिविजिबल है तो वो 9 का भी डिविजिबल होता है, नहीं होता है। अगर वो 3 का डिविजिबल है तो वो 9 का डिविजिबल नहीं होता है। अगर जैसे 3 के टेबल में क्या आता है, 27 आता है, तो 9 के टेबल में 27 आता है, यस आता है। अगर 27 है तो वो 3 और 9 का डिविजिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर 24 है तो यहाँ पे 9 के टेबल में 24 आता है क्या, नहीं आता है। मतलब वो 3 का डिविजिबल हो सकता है, लेकिन ऑलवेज 9 का डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर आता है नो। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, if a number is divisible 9 will you always divisible by 3। yes, अगर 9 का डिविजिबल है तो वो 3 का डिविजिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 36 है, ये 9 का डिविजिबल है, यस, और वो 3 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, यस। मतलब जो 9 का डिविजिबल होता है वो 3 का डिविजिबल हो सकता है, लेकिन जो 3 का डिविजिबल है वो 9 का नहीं हो सकता। मतलब ऑलवेज नहीं हो सकता है, कभी कभी हो सकता है। और जो 9 का हर एक नंबर जो 9 के डिविजिबल है वो 3 के डिविजिबल भी रहते हैं, तो इसका आंसर आता है यस। फर्स्ट का आंसर है यस, सेकंड का आंसर है नो, थर्ड का आंसर है नो और फोर्थ का आंसर है यस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फन एक्टिविटी, pick the factors from the basket and write them in the first column, write the factors missing in the basket in the second column। ये ऑलरेडी आपका हुआ है, आपको मैंने ये प्रोजेक्ट दिया था लास्ट टाइम में। सो देन आल्सो विल सी 35 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 1, 5, 7 एंड 35, ये हमारे 35 के फैक्टर है, ठीक है। उसमें से कौन से नंबर है, 1 नंबर है, 5 नंबर है और 7 नंबर है। तो हमने फैक्टर्स फ्रॉम द बास्केट में कौन से फैक्टर है, 1, 5, 7 है और 35 नहीं है, तो हमने 35 मिसिंग फैक्टर्स में लिख दिया। 48 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, ये 48 के फैक्टर है। उसमें से 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12 बास्केट में है, तो हमने फैक्टर फ्रॉम बास्केट में लिख दिया। 16, 24 और 48 फैक्टर्स नहीं है बास्केट में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन 28 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, ये हमारे 28 के फैक्टर्स है। उसमें से 1, 2, 4, 7 ये बास्केट में है और 14 और 28 बास्केट में नहीं है, तो हमने मिसिंग फैक्टर्स में लिखते हैं। देन 50 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50, ये हमारे 50 के फैक्टर है। उसमें से कौन से नंबर यहाँ पे है, 1, 2, 5 और 10 यहाँ पे है, तो हमने यहाँ लिख दिया। 25 और 50 ये नहीं है, तो हमने मिसिंग फैक्टर में लिख दिया। देन 49 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 7 एंड 49। सो 49 यहाँ पे नहीं है, तो हमने मिसिंग फैक्टर में लिख दिया। और 1 और 7 यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स फ्रॉम बास्केट में लिख दिया। 19 इज द प्राइम नंबर, उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ नंबर, 1 एंड 90। सो 1 है तो 1 लिख दिया है, 19 नहीं है तो हमने 19 यहाँ पे लिख दिया है मिसिंग फैक्टर में। 31 आल्सो प्राइम नंबर। व्हाट इज द प्राइम नंबर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द इट सेल्फ नंबर। सो दिस इज द प्राइम नंबर 31। तो हमने 1 को फैक्टर फ्रॉम बास्केट में लिख दिया और 31 को हमने मिसिंग फैक्टर में लिख दिया है, क्योंकि ये मिसिंग फैक्टर है। सो दिस इज मैथमेटिक बी फॉर द हायर स्किल। सो आई होप all of you nicely understood lesson number 5, factors and multiplies. Now our next lesson is the lesson number 6, geometry. So now we will start our lesson number 6. So first is the recall. So look at here, already you had learned this lesson, okay? Now we will start revision. So first is the recall. First, what is the point? What is the point?
and how to draw point. A point is a very small dot made with a sharp pencil. पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट क्या होता है? डॉट होता है जो हम क्या करते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं और उसको हम नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट. अ पॉइंट इज अ वेरी स्मॉल डॉट मेड विथ अ शार्प पेंसिल. दिस इज अ पॉइंट ओ. यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉ एक पॉइंट बनाया है और उसको नाम दिया है ओ. तो दिस इज द पॉइंट. देन अ लाइन सेगमेंट इज अ straight path between the two path. This is the line segment is called line segment AB. और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, line segment AB. line segment जो होता है वो क्या रहता है, टू लाइन के बीच में होता है. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बुक है. बुक क्या है, इसको कुछ पर्टिकुलर क्या है, जगह है, वहीं पे है. इससे ये बढ़ सकता है क्या, नहीं होता है. मतलब उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं. अ लाइन सेगमेंट इज द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट. टू पॉइंट के बीच में जो लाइन आती है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं. द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी. इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट. एंड दिस इज द साइन ऑफ द लाइन सेगमेंट. देखो ए बी के ऊपर एक लाइन है तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट और इसको रीड कर से कहते हैं लाइन सेगमेंट ए बी. द लाइन सेगमेंट एग्जैक्टली एंडलेस ऑन द बोथ साइड इज कॉल्ड लाइन. इट इज डिनोटेड हैव अ बिगनिंग और एंड. उसके बाद लाइन है. लाइन इज एंडलेस मतलब उसको एंड नहीं रहता है, उसको वो बिगनिंग भी नहीं रहती है और एंड भी नहीं रहता है. जैसे रेलवे ट्रैक है, रोड है, उसको कहीं पे बिगनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है क्या, नहीं होता है, वो एंडलेस होता है. वो क्या है, एग्जाम्पल है लाइन की. ठीक है. दिस इज द साइन ऑफ लाइन. दोनों साइड में एरो है, मतलब ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे मूव हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लाइन. दिस इज द साइन ऑफ लाइन. इसको रीड कैसे करेंगे, लाइन एक्स वाई. कैसे रीड करेंगे, लाइन एक्स वाई. Draw a line segment XY and extend XY on the both sides, but two arrow make on neither end. This is the present line. This is the sign of the line XY. दोनों साइड में एरो है, मतलब ये इस साइड से मूव हो रहा है और ये इस साइड से मूव हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, लाइन XY. A ray is the part of line which is the extent endless is the one direction only. To represent a ray, draw a line segment AB and extend it is the one direction only. Put an arrow mark at the end. This is the present. This is the sign of the ray AB. इसको कैसे रीड करेंगे, रे AB. रे को क्या होता है, बिगनिंग पॉइंट तो रहता है लेकिन उसको एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल टॉर्च होती है. टॉर्च को क्या बिगनिंग पॉइंट तो रहता है, जहाँ से आपका क्या होता है, लाइट जाता है, मूव होता है, यहाँ से बिगनिंग पॉइंट तो ले रहता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है, मतलब वो कहाँ तक मूव होगा. तो रे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लाइट टॉर्च. ठीक है. सो जो हमारा रे होता है उसको बिगनिंग पॉइंट रहता है लेकिन उसको एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है, वो एंडलेस होता है. क्या होता है, एंडलेस. एंड दिस इज द साइन ऑफ द रे. हाउ टू रीड, रे ए बी. इसको रीड कैसे करेंगे, रे ए बी. सो दिस इज रिकॉल. देन मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट. हाउ टू मेजरिंग लाइन सेगमेंट, बाय यूजिंग द रूलर. रूलर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं. जब हम लाइन सेगमेंट निकालते हैं और मेजर करते हैं, ड्रॉ करते हो, मेजर और ड्रॉ करते हैं, तब क्या करते हैं हम, कहाँ से करते हैं, दिस इज द रूलर. ठीक है, ये रूलर है. अगर मुझे लाइन सेगमेंट को काउंट करना है और ड्रॉ करना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, जीरो से स्टार्ट करूँगी. क्या करूँगी, जीरो से स्टार्ट करूँगी. Place the ruler along the line segment AB. Adjust the ruler such as zero mark and consist with a end one of the line segment. Read mark on the ruler at the end B. The line segment
5 centimeter 5 millimeters or of 5 1/2 centimeter in the above figure। देखो यहाँ पे क्या है, वन लाइन से, तो ये होता है 1 लाइन मिलीमीटर्स की होती है। कितनी मीटर्स की होती है? मिलीमीटर्स। 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा भी है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। सो दिस इज द रूलर। और कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जब हम लाइन बनाते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, और जहाँ तक हमें लाइन निकालना है, जैसे हमें 5 तक निकालना है तो हम 5 तक क्या करते हैं? लाइन को ड्रॉ करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। और जब लाइन को हमें क्या करना है? मेजर भी करना है, तो हम क्या करते हैं? इसको जहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, हमें 7.5 तक मेजर करना है, तो हम ऐसे रूलर को पकड़ेंगे और इसको मेजरमेंट करेंगे वो कितनी लाइन है। सो दिस इज मेजरिंग द लाइन सेगमेंट एंड लाइन ड्रॉ लाइन सेगमेंट। सो दिस इज अवर लेसन नंबर 6 geometry. So I hope all of you nicely understood our today's topic. Now next topic is angle. We will be see in our next period. Thank you and have a nice day.